need for an engineering students, or why the IT engineering required to study of a Laplace transform. So basically Laplace transform is nothing but, or the Laplace transform is basically known as for, it is a transformations. What is a transformations? Whenever we have to convert a time domain function into frequency domain functions, we required a transformations, and that transform is known as a Laplace transform. So basically the representation of a Laplace transform is Laplace of f of t is equal to f of s. This is Laplace transform. But obviously, this transformation is happen by using some transformation. So that is known as a definition of Laplace transform. So definition of Laplace transform is, if f of t is any function and we have to convert this time domain function to frequency domain functions, so Laplace of f of t, which is equal to integral 0 to, just a minute, just a second. Yeah, 0 to infinity e raised to minus st into f of t into dt, which is equal to f of s. So basically this conversion is known as Laplace transformations, or this, the tool, or we can say that is the method which we used here. It is known as a Laplace transformations or Laplace transform. Now moving ahead with the your syllabus point of view. So according to syllabus, the Laplace transform is combined with the Laplace transform as well as inverse of Laplace transform. The first part is totally we have to convert time domain functions to frequency domain functions, and the second part, when you are going to learn inverse of Laplace transform, that time you have to study about conversion of a frequency domain functions to टाइम डोमेन फंक्शंस. तो यहाँ पे ये जो L है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये यहाँ पे आ जाएगा तो वो L इनवर्स हो जाएगा, मीन्स 1/L हो जाएगा, और वी कैन से दैट इज द इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. So moving ahead with the some standard functions of a Laplace transform. So some standard function of Laplace. Now see, when I say e raised to minus st into f of t into dt is equal to f of s. So this is the definition of a Laplace transform in a mathematical way. But कैसा होता है कि हर बार डेफिनेशन यूटिलाइज करके उसको इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व करके फाइंड आउट करना, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो दैट्स व्हाई कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको डायरेक्टली रिमेंबर रखने होंगे, याद रखने होंगे, जिससे आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पे यूटिलाइज हम करेंगे. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई से लाप्लास ऑफ वन, लाप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू, व्हेन आई से लाप्लास ऑफ वन देन इट इज इक्वल टू 1/s. अब ये कैसा है, डायरेक्टली आप याद रखना है आपको, बिकॉज अगर इसको मैं यहाँ पे रख के इंटीग्रेट करूँ तो मुझे एट द एंड रिजल्ट वही होगा. तो हर जगह हम उसको रख के इंटीग्रेट करके फाइंड आउट नहीं करते हैं.
Secondly, if I'm going to taking that is a Laplace of e raised to plus minus at, e raised to plus minus at, then I will get 1 upon s minus plus a. अगर प्लस ए टी है तो s माइनस ए होगा, अगर e रेज टू माइनस ए टी है तो प्लस ए होगा. सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी, साइन ऑफ ए टी, then it is known as a upon s square plus a square, a upon s square plus a square. सिमिलरली अगर साइन है तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे कॉस भी आपके साथ होगा. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos of at is equal to s upon s square plus a square. So these are the standard functions which we have to utilize in our module or in our chapter. Similarly, दो और फंक्शन है जिनको हम स्पेशल फंक्शंस बोलते हैं, बेसिकली नोन एज अ हाइपरबोलिक फंक्शंस. These are the circular functions. tan नहीं है, cot नहीं है. tan cot फाइंड आउट करना है तो दोनों को डिवाइड कर देना, तुमको मिल जाएगा. So moving ahead with this part, Laplace transform of sine of hyperbolic of at, या h आ जाता है तो हाइपरबोलिक फंक्शंस हो जाते हैं. तो इट इज इक्वल टू a अपॉन s square minus a square. See the difference. Here it is a plus, here it is a minus. And the last one becomes Laplace of cos of hyperbolic of at, which is equal to s upon s square minus a square, s upon s square minus a square. So see the difference between circular functions and hyperbolic function. The only difference is a minus and plus in the denominator. So these are the standard functions of Laplace transform. अब यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जिसको होते हैं. थ्योरम्स वगैरह कोई भी टर्म्स आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, सिर्फ प्रॉब्लम्स आएंगे. प्रॉब्लम्स वेदर इट विल बी अ थ्योरी ऑफलाइन एग्जाम और ऑनलाइन एग्जाम, जो भी एग्जाम होगा आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बेस पे ही क्वेश्चंस आएंगे. थ्योरम वगैरह वेरीफाई करने या प्रूफ करने नहीं आता है. नाउ मूविंग अहेड विद दिस पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, sorry, next concept, that is a first shifting theorem. So first shifting theorem. First shifting theorem. What is basically first shifting theorem? First shifting theorem state that अगर आपका लाप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू, चलो वन तो जाने दो, ठीक है वन ही लेते हैं, वन इज इक्वल टू वन बाय एस से. अगर आपका लाप्लास वन इज इक्वल टू वन बाय एस है, या आपका लाप्लास साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक मिसाल के तौर पर. तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट है, इजीएस्ट लैंग्वेज में, आसान भाषा जिसको कहते हैं, उसमें कहा जाता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बेसिकली होता है एक्सपोनेंशियल के लिए, कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसे ये ई रेस टू प्लस माइनस ए टी है, ये अगर किसी और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पे वन के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा, लाप्लास ऑफ ई रेस टू
प्लस 80 लेते हैं इंटू 1, तो 1 का लाप्लास यहाँ पे क्या है 1/s, तो यहाँ पे क्या है ई रेस टू प्लस 80 मतलब ये क्या है आपका t प्लस में है, तो 1 का लाप्लास 1/s था, तो अगर प्लस a है तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस a, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। सिमिलरली अगर जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, या हम लोग बोलें अगर ई रेस टू बी टी मल्टीप्लाई होगा साइन 80 से, तो ई रेस टू माइनस बी टी अगर मल्टीप्लाई होता है आपका साइन ऑफ 80 से, ई रेस टू माइनस बी टी मल्टीप्लाई होता है आपका साइन ऑफ 80 से। सो व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, वो आपका एज इट इज ए अपॉन प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। खाली वो क्या कहता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, कि जहाँ पे भी आपका एस है, अगर यहाँ पे ई रेस टू माइनस बी टी है, मतलब टी वाला टर्म अगर माइनस है तो बी माइनस हो ही जाएगा, अगर माइनस है तो जिधर भी एस है उधर आप प्लस करोगे। यहाँ पे लाप्लास वन क्या था 1/s, उसको मल्टीप्लाई क्या था ई रेस टू 80, तो ए यहाँ पे क्या था प्लस, तो एस के साथ क्या हुआ माइनस। सिमिलरली यहाँ पे क्या है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस बी टी हियर, सो एस के साथ यहाँ पे क्या होगा एस प्लस बी और ये पूरा स्क्वायर, जिसका पूरा कंक्लूजन क्या कहा जाता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट शिफ्टिंग, पूरे चैप्टर में हर जगह रहेगा। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशंस के बेसिस के कहूँ या रिप्रेजेंटेशन, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर आपने ऊपर देखा होगा तो हमने क्या लिखा था एफ ऑफ एस, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। दिस implies if an exponential function is multiplied with any time domain functions like e raised to minus at into f of t, so Laplace transform of f of t is f of s. So this is equal to f of s, f of t का लाप्लास तो f of s हो गया, लेकिन एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई है और ऊपर में क्या है माइनस ए है, तो s के साथ आप क्या करोगे प्लस ए, एंड दिस इज अ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सो दिस इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अगर यहाँ पे प्लस 80 होता तो s के साथ माइनस ए होता, जैसे मैंने पहले लिखा है प्लस माइनस 80, तो 1/s माइनस प्लस ए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, किधर करना है s के साथ। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे अगर जैसे दूँ, अगर आपको है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 3t है और आपको बोला गया है कॉस ऑफ 2t, सो वी हैव टू फाइंड, पहले लाप्लास ऑफ कॉस 2t का फाइंड आउट कर लो, lap e raised to 3t as it is into cos of 2t, तो मैं cos 2t का पहले देखूंगा तो cos 80 का लाप्लास मुझे याद होना चाहिए s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 2, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो गया cos 2t, फिर एक्सपोनेंशियल है तो लाप्लास ऑफ e raised to 3t cos of 2t, ये हमको एक ही स्टेटमेंट बोला गया है कि जहाँ पे भी s रहेगा वहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल का जो पावर है वो देखने का अच्छी तरह से a, और हर जगह s प्लस ए करने का, तो s यहाँ पे देखोगे तो दो जगह पे है, और ये क्या है ई रेस टू 3t है प्लस, तो ये हो जाएगा s माइनस 3 न्यूमरेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आएगा s माइनस 3, लेकिन डिनोमिनेटर में s स्क्वायर है, देयरफॉर इट इज s स्क्वायर प्लस 4, एंड दिस इज अवर जनरल explanation of first shifting theorem. Now one more function I forget to explain, and that is known as a algebraic function, algebraic functions जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली,
So Laplace of t raised to n is equal to n factorial upon s raised to n plus 1. Please remember this is one more function is there, n factorial upon s raised to n plus 1. For example, अगर t square है तो you have to substitute n equal to 2, तो 2 factorial upon s raised to n plus 1. Similarly, अगर उसमें भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम उसके साथ भी अप्लाई करोगे, then you will get the same concept here. So Laplace transform of, अगर मैं बोलूँ e raised to 4t into t raised to 3 है, तो सबसे पहले t raised to 3 का फाइंड आउट करो आप लगे तो. Laplace of e raised to 4t as it is into t cube, तो t cube means 3 factorial अपॉन s raised to 4 हो जाएगा, 3 plus 1 है, अभी ऊपर ही मैंने लिखा है t raised to n का लाप्लास क्या रहता है, n फैक्टोरियल अपॉन s raised to n plus 1. n मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन s raised to 4. फिर अगर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई, तो जहाँ पे भी s है, s अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह है, ये आपका होगा 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1 ऐसा जाओगे आप. 6 अपॉन 4 क्या है, माइनस है, तो यू हैव टू राइट, सॉरी प्लस है, तो यू हैव टू राइट s minus 4 raised to power 4. So this is first shifting theorem. Now anyone having any doubts regarding first shifting theorem, so please let me know, else I will move ahead for the next part. Sir, please repeat the cos one. Cos 2t. What happened cos 2t? So, just a second. What is the Laplace transform of cos 80? Just see that s upon s square plus a square. We have Yes, to sir. find the Laplace transform of e raised to 3t into cos 2t. So cos 2t का Hmm. क्या होएगा, a के जगह पे 2 आ जाएगा, तो s upon s square plus 4. And according to first shifting theorem, whenever there is a exponential is multiplied with any functions, you have to use s minus और plus a. अब यहाँ पे 3 क्या है आपका प्लस है, तो जहाँ पे भी s है वहाँ पे क्या होएगा, माइनस होने वाला है. So it will becomes s minus 3 upon s minus 3 the whole square plus 4. That's it. Clear है? Okay, sir. Now moving ahead with the next part. Sir, can you take it a bit above? I have to write it. Yes, sir, that's it. Thank you. You want to write? Yes, sir. Okay. So thank you, sir. Done. Okay. So moving ahead with the next part. सर ये एस Hmm? इज टू फोर इसका क्या करना है सर? ये एस इज टू फोर उसके बाद What? ये थ्री एक्सप्लेनेशन डिवाइड बाय एस इज टू फोर उसके बाद क्या था? या थोड़ा सा वो कनेक्शन ब्रोकअप हो गया था. Your voice is not audible properly. हेलो Yes. Yes, please go ahead with your question. Please
go ahead with your question. Sudhanshu Singh. Yes, sir. You asking something? So no, it was not me, sir. Okay. Okay, fine. So I'm moving ahead with this next part. The next part is multiplication by 2. I will solve the numerical once I will finish this explanation. Multiplication by t raised to n. T raised to n. So multiplication by t raised to n, it will be a very easy concept. What it is exactly होता क्या है ये it you should understand first of all. So multiplication by t raised to n in Laplace transform, it means when t raised to n is multiplied with f of t. अब f of t बोले तो कोई भी फंक्शन होगा, उसको जब t raised to n मल्टीप्लाई करेगा, then what we have to do? So it will becomes minus 1 raised to n d raised to n by ds raised to n into f of s into f of s. So this is basically known as a multiplication by t raised to n. मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर टी स्क्वायर टी क्यूब टी रेस टू 4 कोई भी ऐसा टर्म है और वो मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपका सबसे पहला वर्क ये है कि उस फंक्शन का आप लाप्लास निकालो. जैसे अगर cos 3t को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, ऐसा क्वेश्चन है आपका, टी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2t, तो पहले आप इसका लाप्लास फाइंड आउट करोगे और उसके बाद टी स्क्वायर है तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे माइनस 1 रेस टू एन डी रेस टू एन बाई डी एस रेस टू एन. मतलब दो बार उस फंक्शन का इसका जो लाप्लास आएगा उसका दो बार आपको डेरिवेटिव करके फाइंड आउट करना है. सो बेसिकली इट इज़ नोन एज अ मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेस टू एन. फिलहाल मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा यहाँ पे. नाउ यू हैव टू जस्ट remember this formula. Now I'm going to solve few numericals, then we have to tackle few more things. Now before I have to start the problems, I have to explain 2-3 things from first semester of engineering. So you should remember these things. The formula of double angle, like cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta divided by 2, and sine square theta is equal to 1 minus cos 2 theta divided by 2. So these are the few formulas which we have to utilize here. Similarly, sine of 2 theta, which is equal to 2 sine of theta into cos of theta. So if the angle is double here, then it is a single. If angle is one here, then it will becomes half. Half means like what?
साइन ऑफ थीटा अगर यहाँ पे है तो यू हैव टू राइट 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 into cos of theta by 2, then it will becomes equal. So these are the few standard formula. One thing is one more formula we have to learn, that is hyperbolic in terms of exponential. So these are the important formulas. अगर मैं बोलता हूँ cos of hyperbolic of ax है, then it means it is in exponential e raised to ax plus e raised to minus ax divided by 2 होता है, divided by 2. If I am saying that is sine of hyperbolic of ax है, then it means e raised to ax minus e raised to minus ax divided by 2 होता है. So just remember these things in your mind or fixed in your mind, because ये सब चीज़ें मुझे required होने वाली है during problem solve or during you people required for a problem solving and all the stuffs. So these are the important things you should remember these things. These are the standard formula. Sine 0 is 0, cos 0 is 1, sine n pi, sine of n pi जो होता है वो होता है 0, and cos of n pi आपका होता है plus minus 1. Plus minus 1 depend upon, when even number of pi is there then it is positive 1, when odd number of pi means sin pi 3 pi 5 pi 7 pi ऐसा वैल्यू है then it is -1, और even number of pi है तो पॉजिटिव ही रहेगा, like 2 4 6 8 10 कुछ भी रहेगा. Next formula I am to introduce is a defactorization formula. Defactorization formula is what? When 2 sine of a into cos of b we have to multiply, then it will becomes 2 sine of a plus b plus sine of a minus b. When I say 2 cos a into cos b, then it will becomes cos of, sorry, this 2 we have to remove by mistake. It will becomes only sine cos of a plus b plus cos of a minus b. Similarly, when I say 2 sine a into cos of, even cos of b वाला कुछ मतलब नहीं है करके, 2 sine a sine b, so it will becomes cos of a minus b minus cos of a plus b. एक और है जो पहले लिख रहा था मैं, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, and that is equal to sin of a plus b minus sin of a minus b. तो अगर ये याद है आपको तो ये, अगर नहीं भी भूल भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली आगे पीछे कर लेना. 2 sin a cos b है या 2 cos a sin b है, आगे पीछे दोनों में मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर लोगे, इट विल बिकम्स अ वेरी इजी. But when cos a cos b is there, or when sin a sin b is there, you should remember that is when the similar terms are there, cos cos or sin sin, the defactorization formula in terms of cos only. So cos a plus b plus cos a minus b and cos a minus b minus cos of a plus b. Okay.
Now just say, anyone asking? सर वो पाई वाला समझा दो ना, वो इवन और ऑड नंबर वाला, वो कब प्लस होगा कब माइनस होगा सर? Even number of pi. Even means when even number of pi is there, sine 2 pi, sorry, cos 2 pi, cos 4 pi, cos 6 pi, cos 8 pi, cos 10 pi, जब भी even number pi रहेगा, then it is positive one. And when odd number of pi is there, like cos pi, cos 3 pi, cos 5 pi, cos 7 pi, cos 9 pi, जब odd number रहेंगे तो वो आपके माइनस होते हैं. ओके सर. तो सर हम्म. सर मैं पूछना चाहता था कि हम लोग मतलब 2 cos A sin B की जगह पे अगर 2 sin A cos B का फॉर्मूला यूज करें तो चलेगा? 2 sin a cos b की जगह पे 2 cos A sin B की जगह पे 2 sin A cos B का फॉर्मूला यूज करेंगे तो चलेगा? मैं तो आपको उसको फॉर्मूला पूछ कैसे रहा यूज करोगे मैं आप? वही पूछ रहा था क्योंकि आपने वो नहीं बोला, नहीं, मैं तो कंफ्यूज हो गया मैं। मैं मेरा कहने का देखो, एक मिनट बताता हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पे. ये तो फॉर्मूला हो गया आपके सामने. जस्ट अ मिनट. हाँ, तो कैसे, जैसे एग्जांपल है साइन 3x है और कॉस 4x, एक मिसाल के तौर पर. अब ये 2 साइन ए कॉस बी से अप्लाई करो, ठीक है, आंसर वही आएगा 2 साइन ए कॉस बी. अभी ये तुम्हारा क्या हो गया, ए हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, बी हो गया, बराबर ना. 2 साइन ए कॉस बी वाला पहला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हाँ आएगा, हाँ साइन ऑफ 7x आ जाएगा, और प्लस प्लस साइन ऑफ a minus b means 3x minus 4x will becomes minus x1. तो आपको फाइनली क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा है तो साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ x, क्योंकि साइन के अगर एंगल में माइनस है तो माइनस होता है. तो ये आपको आंसर मिल रहा है, बराबर है. हम्म अगर मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, मैंने वही बोला कि आगे पीछे खाली कर लेने का. अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ cos ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 3x और 2 सपोज दिया गया है. अब मेरा a क्या हो गया है, ये पार्ट, और b क्या हो गया, ये पार्ट. ये वाला अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, बराबर है. हम्म तो मेरे को क्या आएगा, देखो साइन ऑफ a प्लस बी मतलब 7x आ गया, माइनस साइन ऑफ a माइनस बी मतलब 4 माइनस 3x क्या आएगा, साइन ऑफ x ओनली. दोनों सेम आ रहे हैं रिजल्ट. हम्म खाली आपको क्या करना है, चेंज कर देना है. तो कैसा है, आपको एक फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप अगर दोनों फॉर्मूला याद रखना है तो फिर दोनों रखिए, ऐसा है, खाली चेंज करना रहता है. साइन ए कॉस भी अगर दिया है आपको ऐसा लग रहा है तो हमेशा याद रखो, साइन को पहले लिखने की आदत रखो. तो साइन को पहले लिखोगे, कॉस को सेकेंड, तो साइन वाला जो एंगल रहेगा वो आपका बाय डिफॉल्ट ए हो जाएगा, कॉस वाला जो एंगल रहेगा वो बाय डिफॉल्ट बी हो जाएगा. ऐसा तो नहीं होगा कि जब इधर इसको इधर लिखोगे तो इसको बी बोलोगे और इसको ए बोलोगे. सर मैं वही पूछ रहा था आपको, मतलब वो फॉर्मूला नहीं सिर्फ वो, मेमोराइज करोगे तो चलेगा, वही पूछ रहा था मैं आपको। हाँ यही सिर्फ मेमोराइज करो, खाली साइन को हमेशा पहले लिखने की आदत रखो बस, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. थैंक यू सर। Okay, now moving ahead with an example for we have to solve few examples on Laplace transform. So the first example I'm taking here, cos of 2t cos of 4t sine of 6t. Find Laplace transform. फाइव मार्क्स के लिए पूछ सकता है.
अगर थ्योरी एग्जाम हो रहा है आपका, ऑफलाइन हो रहा है, तो 5 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सो वी हैव टू सॉल्व। पहले तो देखोगे तो ऐसा बहुत दिमाग में आ जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लाप्लास लिख देते हैं, नहीं। लेकिन आप अगर अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे तो मैंने आपको स्टैंडर्ड लाप्लास जो यहाँ पे लिखाए हैं या जो यहाँ पे समझाए हैं, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाया है मैंने कि लाप्लास ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी का एक साथ लिखा है, नहीं लिखा है मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कॉस ए और इंटू कॉस बी है तो उसका दोनों का साथ में लाप्लास है, तो सेपरेट है, कॉस ए टी अकेला ही है। लेकिन इस सब में अगर आप अच्छी तरह से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो तीनों टर्म मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई होने की वजह से इनको सबसे पहले सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इनको सेपरेट आप नहीं कर लोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो हमको क्या गिवन है, द सॉल्यूशन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। So f of t is equal to, f of t is equal to what? Cos of 2t, cos of 4t into sin of 6t। ऐसा टर्म्स हमको दिया गया है। सो आई एम टेकिंग पेयर, इनका जोड़ी बना लेता हूँ, कोई भी जैसा जो हमको इजी लगता है उसको जोड़ी आप बना सकते हो। सो लाप्लास ऑफ f of t इज इक्वल टू, या लाप्लास अभी नहीं अप्लाई करना है तो मत करो, क्योंकि जब लाप्लास अप्लाई करोगे तो लाप्लास आप लिखना है कि लाप्लास, खाली ऐसा वर्डिंग वगैरह में कहीं पे नहीं लिखना है। जैसे डेरिवेटिव आप अप्लाई करते हो तो डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हो या एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हो। तो फिलहाल मैं लाप्लास नहीं अप्लाई करता, फिलहाल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, मैं कॉस टू टी को साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे कॉस टू टी मेरा साइड में है, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 इंटू साइन को मैं आगे ले लेता हूँ, साइन ऑफ 60 इंटू कॉस ऑफ 40। ठीक है, ये कर दिया आगे पीछे, मल्टीप्लिकेशन है, आगे पीछे कर सकते हैं। 2 कैंसिल करोगे, फिर से करोगे तो सेम ही टर्म आपको मिल रहा है। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ मैं। सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू cos of 2t एज इट इज, 1/2 को बाहर लिख देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आपके सामने है, साइन ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट वन। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इट विल बिकम साइन ए प्लस बी। तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 10t हो जाएगा, और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2t हो जाएगा। तो ये टर्म हमको मिलता है मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन अभी cos 2t एक टर्म और बचा है मल्टीप्लिकेशन में, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। सो f ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, cos 2t इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होएगा, देखो साइन ऑफ 10t को मैं हमेशा साइन को आगे रखता हूँ, साइन ऑफ 10t इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस साइन ऑफ 2t इंटू कॉस ऑफ 2t इंटू कॉस ऑफ 2t। ये दोनों टर्म्स हमको मिल गए हैं। फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सो एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा ये पार्ट, क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो 2 से मुझे डिवाइड भी करना होगा। सो 2 साइन ऑफ 10t कॉस ऑफ 2t प्लस 2 साइन ऑफ 2t इंटू कॉस ऑफ 2t। अभी अच्छी तरह से आप ध्यान दोगे एक चीज़ पे, कौन सी चीज़ पे ध्यान दोगे, साइन 2 थीटा क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सेकेंड वाला पार्ट अगर आप देखोगे
तो 2 sin 2t इंटू साइन 2t तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू 2t, मतलब साइन 4t लिख सकता हूँ इस पार्ट को। या नहीं समझ में आता है तो वही फॉर्मूला अप्लाई करो जो फॉर्मूला आपने सीखा है, सेम आंसर मिलेगा आपको। तो आई एम अप्लाइंग हियर f of t इज इक्वल टू 1/4 साइन ऑफ a प्लस b, तो साइन ऑफ 12t हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ a माइनस b करोगे तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 8t, प्लस साइन ए 2 साइन ए कॉस बी मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ 4t हो जाएगा, और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी करोगे तो 2t माइनस 2t क्या हो जाएगा 0। अभी इधर लाप्लास अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही लाप्लास अप्लाई करूंगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/4, यहाँ से ही मैं लाप्लास अप्लाई करता हूँ, एल लिख देने का तो लाप्लास अप्लाई। अभी 1/4 एज इट इज, साइन ए टी का लाप्लास क्या होता था a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता था ना। लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे 12 है तो 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर या 144 लिखना है तो, प्लस 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सब टू यू। सो प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका सम आके खत्म हो जाता है। Now you just see and let me know if there is any doubt regarding any step. Question was f cos 2t cos 4t cos 6t. Sir, Hmm? sir, can you please repeat from ft equals to 1 upon 2 cos 2t from there? Second step or third step? Third step, sir. See, from third step if you can see that f of t is equal to 1/2, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर 2 से पेयर बना लिया इनका मैंने, और Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और अप्लाई कर दिया फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी, तो इससे मेरे को ये स्टेप मिला। अब 1/2 केप्ट एज इट इज, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई किया हूँ तो साइन 10t इंटू कॉस 2t ये पार्ट मिला मेरे को, प्लस साइन 2t इंटू कॉस 2t मुझे ये पार्ट मिल गया। ये दोनों पार्ट हो गए कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद फिर से मैंने क्या किया, अब ये डायरेक्ट तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूले में अगर देखोगे हर जगह 2 2 2 प्रेजेंट है, तो मुझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मैथ्स हमेशा बोलता है इक्वल रखने का, 2 से इधर मल्टीप्लाई किए 2 से इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी 1/2 था तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1/4 हो ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो 2 इंटू साइन 10t हो गया कॉस 2t प्लस 2 इंटू साइन 2t कॉस 2t। फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2 साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए 10t है 2t तो 12t हो गया, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी तो 10 माइनस 2 8 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी 4t हो गया, और सेकेंड में प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा पार्ट 0। और यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया था, लाप्लास अप्लाई किया इसलिए एल लिखा है। तो एल इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/4 साइन 12t क्या होएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ए इधर कितना है 12 है, तो 12 बाय स्क्वायर प्लस 144 लिखो या 12 स्क्वायर लिखो, प्लस 8 बाय एस स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर लिखो, और प्लस 4 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये 0 है तो 0 का लाप्लास नहीं होता है। Okay, sir. सर हम्म, सर ब्रैकेट के बाद लाप्लास का एल लगाना जरूरी है क्या? कि कंपल्शन मतलब कंपल्शन ओके है। ओके सर। देखो यहाँ पे नहीं रखा हूँ एल, इधर एल नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इनका यस लाप्लास सर। फाइंड आउट कर दिया है, इसकी वजह से फिर इधर एल नहीं आएगा। अच्छा मतलब लगाने के बाद अगर उसका इवेल्यूट कर दिया तो फिर लाप्लास लगाने की जरूरत नहीं है हाँ, मतलब फिर नहीं एंड जरूरत है, ये तो इस फंक्शन का लाप्लास हमने लिखा है इसकी वजह से इधर बाहर रखा है, लेकिन इधर फंक्शंस में जब अप्लाई कर दिया आपने लाप्लास तो लिखना जरूरी नहीं है। ओके सर। Anyone more doubt? Now see, I already uploaded a lectures on this topic because for regular students SEM 3
ऑलरेडी मेनी क्वेश्चन सॉल्व ऑन माय यूट्यूब चैनल। ऑलरेडी आप लोग को लिंक में जो देता हूँ वो यूट्यूब चैनल का ही लिंक देता हूँ, बट आप लोग एक बार जाके रेफ़र करोगे तो ऑलरेडी मतलब उसके लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स के वीडियोस वगैरह हैं, क्योंकि कैसा है आप लोग का डिप्लोमा है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर है, तो आप लोग का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत कम है, वेरी मतलब बहुत कम स्पैन ऑफ टाइमिंग शायद आपको मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन शायद सेम 3 का पहले वो लोग करेंगे यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल एंड ऑल के बेसिस पे। तो टाइम स्पैन कम है, सिलेबस पूरा कम्प्लीटली है, सिलेबस में बिल्कुल कट शॉर्ट नहीं है, तो इसके लिए सर जब ओरिएंटेशन में आए थे तभी मैम बोल रहे थे कि कुछ कट हो सकता है, बट यूनिवर्सिटी से अभी तक आया नहीं, बट नो नो, कट होने का यूनिवर्सिटी चांसेस ने तो है ना? क्लियर नोटिस भेजा है हम लोगों को, उसमें क्लियर लिखा है कि मैथ्स का कोई भी सिलेबस डिडक्ट नहीं होगा। ओके, तो कैसा है? एक मिनट। हाँ, तो मैथ्स का सिलेबस तो नहीं कट होने वाला है, क्योंकि सीधा क्लियर आया है, मतलब हम लोग को इंस्ट्रक्शन। हाँ, मैथ्स का सिलेबस कोई भी डिडक्शन नहीं है। तो कैसा है कि हम लोग उतना लेक्चर्स मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने में डिफ़िकल्टीज आएगा कि इतना पूरा पूरा इतना ज़्यादा, और ऑलरेडी मतलब मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर ही हैं सेम 3 के, तो मैं तो यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा भागना पड़े, क्योंकि जो टर्म एंड है आप लोग का वो बहुत जल्दी होगा। ये जो सेम 3 का टर्म एंड है वो बहुत जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनके सेम 3 के कंपेरिजन में। तो उतना न्यूमेरिकल्स कवर करना डिफ़िकल्ट होगा, तो मेरा जो पुराना जो लेक्चर्स हैं उसका लिंक ऑलरेडी मैं शेयर मतलब कर दूंगा, मतलब कर ये आप लोग के इस पे क्लासरूम पे, और प्लस आप लोग यूट्यूब पे जाके देखोगे तो वहाँ पे भी मतलब मेरे लेक्चर्स यही लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड ही हैं, तो वो लेक्चर्स को भी आप रिफ़र करो, ऐसा रिफ़र करते जाओ, वो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देखते जाओ। उसके बाद भी अगर आपको मतलब समझता नहीं है, डाउट वगैरह आता है, तो आप अपना डाउट वगैरह भी साइड में लिख के रखो, बिकॉज मैं जानता हूँ डिप्लोमा स्टूडेंट्स को अभी आप लोग फेस टू फेस हम लोग देखे ही नहीं एक दूसरे को, और शायद ये ईयर ही ऐसे एंड हो जाए। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए मतलब ये मैथ्स ही जो है ये सबसे ज़्यादा नाइटमेयर रहता है, मतलब आप लोग को शायद इजी लगता हो या क्या लगता हो, मैं तो उतना अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ अभी, क्योंकि मैं मिला नहीं आप लोगों से, बट from my experience I'm working in Universal College of Engineering from last 8 years। लास्ट 8 years से मैं इसी कॉलेज में हूँ, एंड मैं मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ में देखा हूँ, M3 एज वेल एज M4 के लिए। M4 एक टाइम ज़्यादा इजी हो जाता है, बट M3 में ज़्यादा तकलीफ में मतलब देखा हूँ स्टूडेंट्स को। तो आप लोग अभी से थोड़ा सा M3 पे ज़्यादा फोकस करो। M4 इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि M4 का जो सिलेबस है वो कॉम्पिटिटिवली मतलब कंपेयर करोगे आप इसके साथ M3 के, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। वहाँ पे उतना इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, पूरा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है आपका सिलेबस। आगे जो फूरियर सीरीज है वो पूरा इंटीग्रेशन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है, लाप्लास पढ़ रहे हो इसमें भी अभी आगे इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि M3 थोड़ा ज़्यादा टफ है एज कम्पेयर टू M4 के, तो M3 पे अच्छी तरह से फोकस रखो। अगर आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम हुआ देन इट विल बी अ वेरी गुड फ्रॉम फॉर योर पीपल, बट इन केस अगर ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ, बिकॉज फ्रॉम 15 February द कॉलेज इज गोइंग टू बी वर्किंग फॉर 50% और समथिंग, आप लोग का हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली स्टार्ट होते चले जाएगा। और जो टर्म एंड है, टर्म एंड शायद अप्रैल में आप लोग का ख़त्म हो जाता है। सो वी हैव मैक्सिमम 1 month
1.5 month because 10 Feb तो लग जाएगा कल से ही. तो if you count from Sunday as well as the जो बैंक हॉलीडे वगैरह आएगा वो सबसे अगर काउंट करोगे तो हमारे पास उतने लेक्चर्स नहीं है जितने हमारे पास होने चाहिए. और ऐसा ऐसा भी नहीं है कि फैकल्टी फ्री है मतलब वगैरह, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैथ्स 1 भी पढ़ा रहा हूँ साइमल्टेनियसली, मैथ्स 3 भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के लिए फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट टास्क आ चुका है. मैथ्स 1 पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स 3 पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स 4 पढ़ा रहा हूँ, और प्लस एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी कंप्यूटर में है वो भी सब्जेक्ट पढ़ा हूँ. तो टोटल 4 सब्जेक्ट के मेरे लोड है. तो इसलिए आप मेरे जो पुराने लेक्चर्स हैं उसको भी देखो अच्छी तरह से, उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं प्रॉब्लम्स को देखो. उसके बाद भी डाउट वगैरह अगर जनरेट होते हैं तो डाउट वगैरह आप अच्छे से लिख के रखो. मैं लेक्चर्स वगैरह में जैसे आज 2:45 को हम लोग को ज्वाइन होना था, मैं ऐसा आगे चल के थोड़ा और जल्दी ज्वाइन होऊंगा, तो उसमें जैसे 15 मिनट 20 मिनट पहले, या फिर अगर ऐसा होगा तो हम कभी संडे को अरेंज करेंगे 1-2 घंटे का, उसमें अगर आपके डाउट्स है तो वहाँ पे मैं क्लियर करूँगा. दूसरी चीज़ आपके ट्यूटोरियल्स हैं, ट्यूटोरियल आपके M4 में भी हैं. देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ टास्क है. क्यों मैं टफ टास्क बोलता हूँ? आपको M3 M4 साइमल्टेनियसली हैंडल करना है, इसकी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि मतलब हर जगह आपको भागना ही पड़ रहा है. आपको ट्यूटोरियल है 20 मार्क्स, आपको मिनी प्रोजेक्ट है, आपको लेक्चर भी बैठना है, सब कुछ करना है. तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बहुत इश्यू होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि अभी मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट नहीं किया हूँ, मुझे ट्यूटोरियल भी स्टार्ट करना है. एक दिन मेरा ट्यूटोरियल का है, तो आप खुद अपने आप को उस तरह से मैनेज करो. मैं हमेशा तैयार हूँ आपको हेल्प करने के लिए, उसके लिए बेफिक्र रहो आप. इन एवरी एस्पेक्ट्स, मतलब कोई भी एरियाज रहे, कोई भी जिसमें रहे, आप बिंदास मेरे साथ वो रहो. कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं लो मैथ्स वगैरह रिलेटेड. डेफिनेटली आई एम हियर टू हेल्प यू. और आप M3 कैसे भी करके क्लियर करो, M4 कैसे भी करके क्लियर करो, और आप आगे चले जाओ. मतलब वाई एम टेलिंग दिस थिंग, क्योंकि बिकॉज क्या होता है आपके लिए ये सब जो IT इंजीनियरिंग है ये बहुत ईजी है, क्योंकि आप डिप्लोमा में ऑलरेडी पढ़े होंगे बहुत सारे सब्जेक्ट जो आपके कोर ब्रांचेस वाले हैं. अब वो सब्जेक्ट्स मुझे इतना पता नहीं है, बट कोर्स ब्रांचेस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी आप हैंडल कर चुके रहोगे. चाहे उसका कम टॉपिक पढ़े होंगे, अभी अपडेटेड वर्जन होगा उसका ये वो. बट मैथ्स 3 कैसा है, बहुत से लोग तो मैथ्स लेते भी नहीं है शायद डिप्लोमा में, और सेम 3 तक आपको मैथ्स रहता है. उसके बाद पूरा 3 सेमेस्टर आपको मैथ्स पूरा ब्लैंक रहता है, मैथ्स ही नहीं रहता है. एंड सडनली व्हेन यू आर एंटरिंग इन इंजीनियरिंग डायरेक्टली M3 रहता है, फिर M1 M2 का बेस आपका नहीं रहता है. तो इसके लिए थोड़ा गौर रखो, अच्छे से लेक्चर में ध्यान दो अच्छी तरह से. प्रीवियस लेक्चर्स में अपलोड किया हूँ मैं लिंक, में डायरेक्टली वो प्लेलिस्ट का लिंक आपसे शेयर करूँगा, तो वहाँ पे आप जाके अच्छी तरह से देखो. हमारे रेगुलर लेक्चर्स होंगे M3 के, वो भी अटेंड करो प्रॉपरली, उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे. उसके अलावा आप खुद से भी अच्छे से मेहनत करते हो, डाउट वगैरह आता है तो आप डाउट वगैरह पूछो. अटेंडेंस मैं आज ले रहा हूँ डायरेक्टली, बिकॉज डिप्लोमा का मेरे को काउंट पता है टोटल कितने हैं हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल टेक द अटेंडेंस. मैं नेक्स्ट टाइम से आपको लोग का वो कराऊंगा, मतलब गूगल फॉर्म. आज फर्स्ट लेक्चर था एंड सडनली मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर के बाद ही डायरेक्ट ज्वाइन हुआ हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए मैं वो गूगल फॉर्म क्रिएट नहीं किया. जस्ट वेट, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ. तो मैं एक बार नेम लेता हूँ फटाफट, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग हो या नहीं हो उसमें मीट में. सो 27 स्टूडेंट्स एंड हियर इट इज़ 30, मतलब 228 होना चाहिए. 31 हो गए अभी. Just wait, again I am refreshing. Don't left ना please, just wait for 1 minute. किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो बिंदास. अच्छा शर्माना नहीं, टेंशन वगैरह नहीं लेना. Anyone having any doubts regarding whatever I explained? Yes. सर ये एल्जेब्रिक फंक्शन का सर फॉर्मूला बता दो ना सर. Algebraic functions का फॉर्मूला यस सर. लाप्लास है ना. यस सर. t raised to n का n factorial upon s raised to n plus 1. I'm just showing you. ओके सर. n factorial upon s raised to n plus 1, ये पार्ट ओके सर. दिख रहा है. यस सर. यस यस. और किसी को मैथ्स का डर वगैरह है कुछ ऐसा, किसी को टेंशन वगैरह आता है मैथ्स वगैरह से, तो बिंदास बोलने का, ज़्यादा वो नहीं करने का. आई एम इन योर कॉलेज, आई एम एज अ स्पोर्ट्स हेड,
तो मैं स्पोर्ट्स वगैरह बहुत कराता रहता हूँ, लेकिन इस साल सब ऑफलाइन ही बैठे हैं, तो बिल्कुल एकदम रिलैक्स माइंड के साथ रहने का, बिल्कुल ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक आध केटी लगेगा और कुछ नहीं होगा। सो डोंट माइंड एंड डोंट वरी एनीथिंग, एकदम रिलैक्स होके अच्छे से इंजीनियरिंग करो। दिस इज माय एडवाइस, फर्स्ट एडवाइस एंड लास्ट एडवाइस। बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होने का। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन टेल मी रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। अगर कुछ पर्सनल इशू भी है, कुछ भी है, आपको लगे शेयर करना, यू कैन शेयर। ओके Okay, sir. ओके, चलो, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, वेलकम।